Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 29th July 2020. So before moving on to articles, let me give the significance of the day. 29th July is celebrated as International Tiger Day. This was started after, let's say, there was summit in St. Petersburg, Tiger Summit, and after that we have decided to celebrate this as a, let's say, International Tiger Day on 29th July okay, of, let's say, every year. So let us move to the important articles from today's newspaper. So for men's purpose, one editorial on page number 6 is important. So two editorial on left side, let's say not much of significance in terms of content wise. So that's why we have not, let's say, included that in today's part. So कुछ जो important parts होते हैं prelims के लिए कुछ articles है उसके regarding हम ज़्यादा आज देखेंगे. So first article on page number 6, adopting a public system approach to COVID-19. Now let me give the overall understanding of the article first. So here, if you look at the context of the article, the importance of public health infrastructure it is talking about to deal with COVID-19 disease, and how it is saying that a public good has the characteristics that is accessible to all. If you take the example, clean and sanitized public places is the, let's say, perfect example of public good. Okay, so likewise the public health infrastructure it is talking about the public good. Okay, and how do we need to have, let's say, how it has impact in dealing with COVID-19, it is analyzing that, and in that it has given very good examples. ठीक है, तो क्या examples है उसमें पहले तो उन्होंने एनालिसिस जब किया है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो बेस्ट एग्जांपल इट इज टॉकिंग अबाउट टू कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स. One category it is talking about Delhi, Maharashtra and Gujarat, and second category it is talking about Goa and Kerala. Okay, so we know that yes, Delhi, Maharashtra, Gujarat, wealth wise they are having, let's say, progressive as compared to Kerala and Goa. However, public health infrastructure is better in Kerala and Goa as compared to these three countries, three states, and that's why the result in terms of COVID-19 disease spread and, let's say, health indicators, for example, the highest death rate is observed or morbidity rate is observed in Gujarat, and then we can say Delhi and Maharashtra, as compared to, let's say, these two states. Let's say Goa is having lowest morbidity rate or death rate in, let's say, except northeastern states. ठीक है, तो मेन लाइन इंडिया में जो भी स्टेट्स है तो वहाँ पे देखा जाए तो गोवा का सबसे अच्छा हेल्थ इंडिकेटर है कोविड-19 को डील करते वक्त. एट द सेम टाइम केरला इज ऑल्सो वेल इक्विप्ड to deal with COVID-19 disease, though we can say that it has, let's say, lot of challenges when we say जब इनिशियल टाइम में जब कोविड-19 इंडिया में एंटर हो रहा था तब सबसे ज़्यादा केरला को थ्रेट था, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटर्न केरला में आ रहे थे. ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डील किया था. तो ये एक साइन है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट होना. Second aspect it is talking about is the best utilization or effective utilization of available public health infrastructure. Again we are saying that India lacks, let's say, effective utilization of public health infrastructure that is created already. Okay, so these two aspects we need to understand when we talk about public health infrastructure as a public capital. ठीक है, तो अभी एक एक पॉइंट मैं आपको इसमें बता देता हूं कि आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है. ठीक है, तो टू स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिवली बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डाइल्यूटेड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 आर गोवा एंड केरला, जो अभी मैंने बात की थी. गोवा हैज वन ऑफ द लोएस्ट मॉर्टेलिटी रेट्स इन द कंट्री आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. द हेल्थ आउटकम्स आर रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस रेंजिंग from level of expertise of health personnel to the civic sense of population. अब ये civic sense
कब काम में आता है, जैसे कि सिविक सेंस का मतलब यह है कि लोग जो है वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं जब पब्लिक प्लेस में होते हैं, तो उसको सिविक सेंस बोला गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो लेट्स से हैविंग इन्फ्लुएंस इन लेट्स से हैविंग आउटकम health outcomes in those states. We can see a relationship between basic indicators of level of health infrastructure and morbidity और mortality in two sets of states. ये तीन जो मैंने बताए थे, और ये केरला और गोवा, ये टू सेट्स है और इनमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा. The states of India harboring greater wealth than most have registered higher mortality rate from COVID-19. जो बेस्ट एग्जांपल अभी जो मैंने बताया था गुजरात, महाराष्ट्र एंड दिल्ली का, जहाँ पे वेल्थ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑफ द कंट्री इज वेरी हाई एज कंपेयर टू लेट्स से स्मॉलर स्टेट्स लाइक केरला एंड गोवा. These states also face challenge of crowded urban spaces where social distancing is not possible. We know that the million plus cities and metropolis like Delhi and let's say Mumbai and even Ahmedabad वहाँ पे इसकी वजह से क्राउडेड प्लेसेस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल होता है. देयरफॉर क्लियरली वेल्थ इज नॉट ऑलवेज हेल्थ. व्हेन एन एपिडेमिक स्ट्राइक्स पब्लिक कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ट्रू वेल्थ. इंडियाज पब्लिकली क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअरली यूटिलाइज्ड. ये भी उसमें एक आप आर्गूमेंट ऐड करिए. पब्लिक सिस्टम्स अप्रोच, ये अप्रोच के बारे में आपको पता होना चाहिए. आप एज अ सॉल्यूशन, एज अ वे फॉरवर्ड इसके बारे में लिख सकते हैं. पब्लिक सिस्टम्स अप्रोच इज नीडेड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन एड्रेस द सिचुएशंस सच एज वन वी आर नाउ फेसिंग एज एन एपिडेमिक swirls about us. It takes into account both physical resources available in the public domain and the practices adopted in governing their use. ठीक है, तो इसको पब्लिक सिस्टम्स अप्रोच बोला गया है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज दैट वेदर वी आर हैविंग इनफ काइंड ऑफ लेट्स से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. एंड सेकेंड एस्पेक्ट इट इज टॉकिंग अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पब्लिक गुड. ओके, तो उसका कितना इफेक्टिव इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करने वाला है पब्लिक सिस्टम्स अप्रोच. सो दैट्स व्हाई द ऑथर और द राइटर इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू डील विथ कोविड-19 डिसीज. फाइन. तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, यही जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको आर्टिकल में दिखाई देगा. वेल्थ इज नॉट ऑलवेज हेल्थ. व्हेन एन एपिडेमिक स्ट्राइक्स पब्लिक कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ट्रू वेल्थ. एल्यूसिडेट. तो एल्यूसिडेट मतलब आपको ये एग्जाम्पल दे के फैक्ट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स दे के एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये सारे फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल बिकम्स इम्पॉर्टेंट. टेक इनपुट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग इन दिस मैनर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. Bagjan blowout panel faults OIL, Oil India Limited on safety. Now there was one panel appointed by National Green Tribunal NGT, and it found that in its interim or preliminary report that there has been mismatch between planning and execution leading to this blowout that caused extensive damage to public and private resources. The panel also looked into several aspects such as cause of gas leak, the extent of damage that has caused to human life as well as wildlife and environmental, besides rehabilitation, preventive and remedial measures. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली सेंसिटिव हम बोल सकते हैं कि हैबिटेट्स वहाँ पे थे. कौन से दिब्रू शिकाव नेशनल पार्क एंड मागुरी मातापुंग वेटलैंड, जिसको माधुरी मोटापुंग बिल बोला गया है. बिल जो है हम बोलते हैं कि वो जो वेटलैंड की तरह होते हैं जैसे कि हमने बिहार में देखा था बोगा बिल जो है. ठीक है, तो ऐसे ही मागुरी मोटापुंग वेटलैंड या बिल यहाँ पे है. तो इसका लोकेशन पहले आप देख लीजिए इस मैप पे कि बागजन ऑयल और गैस वेल कहाँ पर है. बागजन जो है, तो आपको पता है कि आसाम पे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है वहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि ऑयल एंड गैस
इंडिया में रिजर्व्स जो है एक्सप्लोर किए गए थे, ठीक है। नाउ दिस लाइज इन दिस ब्रह्मपुत्र प्लेन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर बागजन है, उसके बाद दिग्बोई है, उसके बाद नाहरकाटिया ऑयल एंड गैस फील्ड्स एंड देन मोराल ऑयल एंड गैस फील्ड्स। ये सीक्वेंस में आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो आपको लोकेशन भी कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। और ये दो चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि दिब्रू-शिखोव नेशनल पार्क और ये जो है, तो अगले पॉइंट में आप देखिए यहाँ पर दिब्रू-शिखोव नेशनल पार्क, basically it is part of this Dibrú-Shikhov biosphere reserve, okay, this national park, and then this Maguri Mataping bill. So these two are part of this Dibrú-Shikhov biosphere reserve, which was declared or formed in July 1997, okay. So this is located in Assam. It is bounded by Brahmaputra and Lohit river in the north and Dibru river in the south. आप लोकेशन देखिए इस मैप पे, जो अभी हमने बागजन ऑयल और गैस वहाँ पे देखा था, वेल वहाँ पे ही इसका लोकेशन है एग्जैक्टली। सो द फॉरेस्ट ऑफ दिस डिब्रू-शिखोव कंसिस्ट ऑफ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। सो इट इज़ वन ऑफ द लास्ट हैबिटेट्स ऑफ देवहंस, या फिर उसको और एक वर्ड से बोला गया है स्पिरिट डक। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट विंग्ड वुड डक है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है नेशनल पार्क, तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। फाइन। एट द सेम टाइम द वेटलैंड्स लाइक मागुरी मातापुंग बिल, इट हैज़ सेवरल स्पेसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग टाइगर ऑफ रिवर, और वी कॉल्ड इट एज अ गोल्डन महासीर endangered species. So that is also found there, along with some other creatures like Gangetic dolphin, water buffalo, tiger and capped langur. Fine. So this was a specific information regarding ecology and environment of that region. So आपको prelims में इस तरीके से question आ सकता है, which of the following national park was recently in news due to impact of blowout in natural gas well in Assam. तो आसाम के बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, उसमें आपको ये तो पता है इनके लोकेशन काजीरंगा, ओरांग और मानस जो है वो आसाम के वेस्टर्न साइड में है, और डिब्रू-शिखोव नेशनल पार्क इज़ ऑन ईस्टर्न साइड। फाइन। सो इसका आंसर जो है वो ये है डिब्रू-शिखोव। और इस तरीके से और एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि डिब्रू-शिखोव बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको जो है उल्टा किया हुआ है, दिस इज़ इन नॉर्थ, दिस इज़ इन साउथ। ये एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड देवहंस। फाइन। सो 1 and 3 इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे अभी बोला था हमने कि इंटरनेशनल टाइगर डे है आज 29th ऑफ जुलाई। तो आपको ऐसे फैक्चुअल तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अगर आपको यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो आप इस डेट को ध्यान में रख के यूटिलाइज़ कीजिए मेंस एग्जामिनेशन में, एसए में। हाँ ये क्यों सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वी नो दैट ऑलमोस्ट 70% ऑफ लेट्स से टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड is in India, and that's why, and we know that the significance of tiger being a, let's say, keystone species, and its ecological conservation is very important for overall ecological conservation. Fine. तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि नियरली a third of India's tigers are living outside the tiger reserves, and nearly 17 out of 50 tiger reserves are approaching the peak of their capacity at sustaining their populations. ठीक है। तो this may be, let's say, considered as an important aspect here while, let's say, planning and management of conservation efforts by NTCA, so National Tiger Conservation Authority. The reserves by definitions are source and suitable for nourishing the growing tiger population because of their prey availability and territory. However, when they get too crowded, tigers venture out further from sources and form sinks, and much of the wildlife population dynamics is about understanding the source and sink relationship.
तो ये एक थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, बट हमें पता होना चाहिए कि जो कोर एरिया होता है टाइगर रिजर्व का, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स रीजन, एंड द रीजन आउटसाइड दैट कोर एरिया इज कॉल्ड एज सिंक। ठीक है, जो जब टाइगर बाहर आ जाते हैं, क्राउडेड हो जाता है तब। फाइन। सो ये 2010 से हमने शुरू किया है सेलिब्रेट करना आफ्टर लेट्स से सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। फाइन, 29 जुलाई। सो इस पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, 3 बिलियन एनिमल्स अफेक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया बुश फायर्स। तो जो लास्ट ईयर एंड में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बुश फायर्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था वाइल्ड लाइफ पे। सो द वन ऑफ द सर्वे और स्टडी बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, it suggests that 3 billion koalas, kangaroos and other native Australian animals were killed or displaced by the bushfire in 2019-20। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, ये जो पीरियड था 3-4 महीने का, तब बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंसिव बुश फायर हुए थे वहाँ पे। एंड द टोटल नंबर ऑफ लेट्स से दिस आल्सो इंक्लूडेड दोज विच आर डिस्प्लेस्ड because of destroyed habitats and now face lack of food and shelter. Now this is also called as the worst wildlife disaster in modern history। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि the let's say reasons for extinction of species or man-made disaster, or we will call it as a let's say a wildlife disaster because of let's say there are some natural factors, there are some artificial or man-made factors जो हम ओवरऑल देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेनॉन, एंड लेट्स से रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन दीज लेट्स से फॉरेस्ट एरियाज इन ऑस्ट्रेलिया। सो ओवरऑल इट इज़ रिजल्टिंग इनटू मोर एंड मोर फॉरेस्ट फायर्स इन दिस रीजन्स। फाइन। तो जब बाद में कभी इसके ऊपर जब मेंस रिलेटेड आर्टिकल आएगा तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। It is world's biggest conservation organization, founded in 1961, having headquarters at Gland, Switzerland. Its precursor organization was called as Conservation Foundation. Its original name is World Wildlife Fund। ठीक है, तो उसको बाद में उसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऐसे हुआ है। कैंपेन्स इनके स्पेसिफिक कुछ है जो न्यूज़ में रहते हैं, अर्थ आवर या फिर डेट फॉर नेचर स्वैप। ठीक है, या इनका एक रिपोर्ट है बहुत ही सिग्निफिकेंट फेमस रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, विच वॉज स्टार्टेड इन 1998। इट इज़ पब्लिश्ड बाय WWF एवरी 2 years biannually। इट इज़ बेस्ड ऑन लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड कैलकुलेशंस ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का मतलब ये होता है कि ह्यूमन एक्शंस की वजह से इकोलॉजी पे क्या क्या किस एक्सटेंट तक एक इम्पैक्ट हुआ है, उसका एक कैलकुलेशन किया जाता है, उसको बोला गया है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फाइन। सो दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन मेजर्स रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं WWF के ऊपर किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। फाइन। सो हेडक्वार्टर ग्लैंड है, पता है हमें। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इसके बारे में स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। अर्थ आवर कैंपेन जो न्यूज़ में रहता है बहुत बार, आपको पता होना चाहिए, WWF ने लॉन्च किया था। सो दैट्स वाई द आंसर इज ऑल ऑफ देम। फाइन। सो कैप्शंस एंड कोटेशंस, जो पहला आर्टिकल हमने देखा था हेल्थ रिलेटेड, so here you can use them in essay also or GS2। We know that there is HRD topic, here we can expect question on public health infrastructure। तो इसके बारे में आप ये points या statements आप इसमें use कर सकते हैं। Fine। So these were the important articles in today's The Hindu newspaper। So to try to take inputs from this discussion, these articles for your prelims as well as mains examination. Fine. So for further information regarding editorial discussion classes, wherein the in-depth analysis of mains related issues
is done by Ansari sir and team. You can contact Lukman IAS. Thank you.